Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our topic is from second year chemistry from chapter number 13 carboxylic acid. I would like to first introduce the basic concept of carboxylic acid. Then we will move to the preparation of carboxylic acid. So we have already studied about the carboxylic acid. Carboxylic acid is the class of organic compound in which we found a special functional group like so the functional group contain the alkyl group, the carbonyl group and hydroxyl group. So a functional group which contain a carbonyl group attached with hydroxyl group is called carboxylic acid. Acids you have already studied or known about the acidic family, just like acetic acid or uh, benzoic acid or propanoic acid or methanoic acid. So all the acid family or the organic compound except mineral acid belongs to this class of compound. Functional group has carbonyl group and hydroxyl group. We can say it belongs from the carboxylic family, carboxylic group. In chapter number 13, carboxylic acid, the scheme which have been provided from the report noted resources that no long question would be added from this chapter. So far this scheme is tells about the no long question is added from this chapter, so we have to prepare the response of the short question. So we have to study, we have to learn this chapter by the concept of that maybe some short question come from this chapter. So what kind of short question can become from this chapter? Just like the preparation, just like prepare carboxylic acid from Grignard reagent, prepare from primary alcohol. This kind of short question can be converted. Obviously conversion can become from this chapter, just like convert alcohol into carboxylic acid, convert alcohol into aldehyde. So this kind of short question may come from this chapter. So we have to prepare thoroughly this chapter according to our syllabus pattern. So first of all, we learn from that this is carbonyl group and this is hydroxyl group. When carbonyl group, hydroxyl group combine together, they make a carboxyl group. देखो कार्बोनाइल से कार्बन निकला है और हाइड्रोक्सिल से ऑक्सिल निकला है, तो कार्बोक्सिल ग्रुप आपका ये बन गया. Now we have already studied about the nomenclature, so we don't need to be indulged in this long concept. Just be concept that this is a methanoic acid. You already about this is methyl or it's come from methane. So if we write in methane and in the last the E letter is replaced by a suffix is called oic. So just like ethane, ethanoic acid or propane, propanoic acid. In this way we can get the concept of simple E हटाया हमने और OIC उसके साथ attach कर दिया. That is called methanoic acid. Now it is called aliphatic compounds. Now talking about the aromatic compound. You know aromatic के लिए benzene ring compulsory होता है in. तो benzoic acid में just draw a benzene structure and put a carboxyl group. Now it is become benzoic acid. You know acid का मतलब carboxylic acid, ठीक है? So benzene के ऊपर मैंने carboxylic group लगाया. Now it is not a benzene simple, it becomes a benzoic acid. Now it is become benzoic. Now come to the our main topic is preparation of carboxylic acid. How to prepare carboxylic acid, how to prepare in laboratory if we have some compound and we need to make some carboxylic compound. So we can prepare. The first method is from primary alcohols and aldehyde. यानी अल्कोहल से और एल्डिहाइड से मैं आपको अल्कोहल प्रोवाइड करता हूँ और कहता हूँ बेटा इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करिए. तो हाउ कैन यू कन्वर्ट? विद अ सिंपल मेथडोलॉजी.
अल्कोहल, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल, आपने इसकी ऑक्सीडेशन करनी है, ओके। दिस इज नेसेंट ऑक्सीजन, ऐसे नेसेंट ऑक्सीजन जो फ्रेशली प्रिपेयर की जाए और फॉरन यूटिलाइज कर दी जाए, उसे कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। तो इट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब इसकी ऑक्सीडेशन कौन करवाएगा? ऑब्वियसली कुछ एजेंट्स आएंगे जो इसकी ऑक्सीडेशन में हेल्प आउट करेंगे। कौन कौन से एजेंट हो सकते हैं? देखो, पोटाशियम क्रोमेट आएगा, जिसे आप पोटाशियम डाइक्रोमेट कह सकते हैं। कौन से मीडियम में करना है? H2SO4, यानी एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे ये काम करेगा। तो वी हैव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7, कौन से मीडियम में? H2SO4 के अंदर क्या करवाएंगे? ऑक्सीडेशन करवाएंगे। अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा। एल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। मैंने आपको एक स्कीम बताई हुई है सिंपल से, कि अगर मीथेन की ऑक्सीडेशन होगी तो क्या बनेगा बेटा? अल्कोहल बनेगा। और फर्दर अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होगी तो एल्डिहाइड बनेगा। और एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होगी तो ऑब्वियसली आपका क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये स्कीम है, चेन है। आप मीथेन को डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं कर सकते बाय दिस सिंपल ऑक्सीडेशन मेथड, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीडेशन में किस में कन्वर्ट करना है? अल्कोहल में। अल्कोहल किस में जाएगा? एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड फर्दर किस में जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। so this is a chain reaction, you can say that simply alcohol convert हुआ एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड कन्वर्ट हुआ कार्बोक्सिलिक, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब आपने रिडक्शन करनी है तो कार्बोक्सिलिक एसिड किस में कन्वर्ट हो सकता है? एल्डिहाइड में। अल्कोहल में कन्वर्ट हो सकता है और मीथेन में। तो ये अगर आपने याद कर लिया ये सीक्वेंस, कि मीथेन अल्कोहल में जाएगा, अल्कोहल एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड। लेकिन एक सवाल इसमें यह है कि देखो, अल्कोहल के लिए आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, ठीक है ना, ताकि वो कन्वर्ट कर सके। बट इन केस ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के लिए आपको कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं चाहिए। इस सिल्वर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड कहते हैं जो स्ट्रॉन्ग भी ना हो ना वीक हो, दरमियान मिडिल में हो, उससे भी ये कन्वर्ट हो सकता है। जस्ट लाइक आपके पास है टॉलरेंस रिएजेंट। तो अगर आप टॉलरेंस रिएजेंट का यूज करते हो, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये तब भी अपने कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या हो जाएगा बेटा? कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्कीम याद रखिए, अल्कोहल हमेशा एल्डिहाइड में जाएगा, एल्डिहाइड फर्दर विल बी कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्लियर हो गया? फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल से और एल्डिहाइड से आप डायरेक्ट इसमें जा सकते हो, कार्बोक्सिलिक। सेकेंड है फ्रॉम अल्केन नाइट्राइल्स। देखो, अल्केन है तो कोई अल्केन आएगा। नाइट्राइल्स क्या होता है कि जब भी कोई अल्केन, जस्ट लाइक आप CH3 कर लीजिए, ये मेरा अल्केन है, CH4 से आया तो ये अल्काइल ग्रुप है, अल्केन फैमिली से आया है। इसके साथ अगर मैं साइनाइड ग्रुप लगा दूं, सियानो ग्रुप आप कहते हैं, क्या कहते हैं इसे? सियानो ग्रुप, कार्बन नाइट्रोजन, यानी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन के साथ, और ये कार्बन का फोर्थ बॉन्ड बना होता है CH3 के साथ। इस फैमिली को, इस क्लास को आप कहते हैं अल्केन नाइट्राइल्स। क्या कहते हैं बेटा? अल्केन नाइट्राइल्स। सियानो ग्रुप जब अल्केन के साथ अटैच होता है तो कौन सी क्लास बनाता है? अल्केन नाइट्राइल्स, ठीक है। अब इस अल्केन नाइट्राइल से आपने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। कैसे बनाना है? आपके पास अल्केन नाइट्राइल है, आप उसकी हाइड्रोलिसिस करवा लें वाटर किसकी मौजूदगी में? वो द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। एसिड के इसमें किस में कन्वर्ट कर देगा? इसको एसिटिक एसिड में, ठीक है। CH3 C डबल बॉन्ड, और क्या बन जाएगा? आपके पास एक साल्ट बनेगा जिसे कहते हैं अमोनियम क्लोराइड। देखो, रिएक्शन से समझ आ रही है। यहाँ से आप N हटाकर यहाँ से N हट जाएगा, यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद COH में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वाला नाइट्रोजन हाइड्रोजन लेकर अमोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अल्केन नाइट्राइल आप वैसे भी बना सकते हो लेबोरेटरी के अंदर। आप क्या पाओगे? अल्काइल हैलाइड लोगे, RX का मतलब होता है अल्काइल हैलाइड। क्या लेना है? पोटासियम सायोनेट, ठीक है। पोटासियम सायोनेट किसकी मौजूदगी में? अल्कोहलिक पोटासियम सायोनेट लें, और ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा अल्काइल नाइट्राइल, और KX दोबारा आपका वापस बन जाएगा, पोटासियम हैलाइड बन जाएगा। तो ये दो प्रिपरेशन थी। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट।
यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐसा रिएजेंट है जो आपको डाइवर्स टाइप्स बना सकता है ऑर्गेनिक कंपाउंड की। मतलब कोई चीज़ बन नहीं रही हो तो आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से कोई प्रोडक्ट बना सकते हो। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारे पास है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मौजूदगी में हम क्या कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? हमारे पास है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये जो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। इसमें जी आर क्या, जी से ग्रिग्नार्ड और आर से रिएजेंट। अब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है बेटा? एक अल्काइल पोर्शन होता है, सेंटर में मैग्नीशियम मेटल होती है जो इन्फ्यूज होती है बिटवीन अल्काइल एंड कोई भी हैलोजन होता है। मोस्टली हम ब्रोमीन यूज कर लेते हैं, कंट्रोलेबल रिएक्शन और इजीली हमारे साथ ये हो जाता है। तो ब्रोमीन मैग्नीशियम ये फैमिली जहाँ पर मिले, अल्काइल फैमिली में इथाइल लगा ले, कुछ भी कर ले, मैंने मिथाइल लगाया, सेंटर में बेटा मैग्नीशियम ही रहेगा और ये ब्रोमीन। अब ऑब्वियसली सबसे पहला काम होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उनके रिएक्शन कैसे होंगे। तो अगर आप लोगों को चार्जेस समझ आ जाए कि कौन से कार्बन पर क्या चार्ज, तो आप फर्दर प्रोसीड कर सकते। देखो मैंने कहा था मैग्नीशियम हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली ये कौन सा चार्ज लेगी? पॉजिटिव। और ये कौन सा चार्ज लेगी? नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव। ब्रोमीन पर भी पार्शियल नेगेटिव है, लेकिन ये हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव है मैग्नीशियम और ये हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव। तो इन दोनों का बॉन्ड ब्रेक नहीं हो सकता, दोनों स्टेबल है। दिस इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिस इज हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दोनों स्टेबल है, दोनों का बॉन्ड ब्रेक करना मुश्किल है। जबकि आप अल्काइल का बॉन्ड तोड़ सकते हो, इसके ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव है। तो हमारा जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल जो नजर आने लगा है वो मिथाइल ग्रुप है जिसके ऊपर पार्शियल है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड पर चार्जेस बना लो, कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, यू नो वेल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑक्सीजन क्या होता है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल। अब देखो नेगेटिव किस पर अटैक करेगा? ऑब्वियसली पॉजिटिव पर अटैक करेगा। अब कार्बन यहाँ 5 बॉन्ड बनाने लग जाएगा जो कि पॉसिबल नहीं, तो एक बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इस ऑक्सीजन के ऊपर। तो ये हमारे पास ये सिचुएशन मिल जाएगी। ये ओ नेगेटिव है तो ऑब्वियसली मैग्नीशियम ब्रोमाइड इसको सरसरी तौर पर फॉर टेम्परेरी पीरियड के लिए ये बॉन्ड बना के यहाँ अटैच हो जाए। जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो क्या बन जाएगा बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। और देखो मैग्नीशियम ब्रोमीन का बॉन्ड नहीं टूटेगा, एंड तक याद रखना, मैग्नीशियम ब्रोमीन का बॉन्ड नहीं टूटेगा। और जो हाइड्रोलिसिस करवाई उसका OH उसके साथ अटैच क्यों किया? बिकॉज मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +2। एक वो ब्रोमीन से सेटिस्फाई करता है और दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ सेटिस्फाई। नाउ द लास्ट है फोर्थ वन है बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एस्टर ले आओ और उसको बॉईल कर ले सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सिंपल ये तरीका हमने पढ़ा हुआ है। ये आपका एस्टर ग्रुप है, ठीक है ना? एस्टर ग्रुप है तो क्लास कौन सी होगी? एस्टर ग्रुप, ठीक। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करें। अब देखो इसके ऊपर देखो ये नेगेटिव ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, सोडियम हमेशा आपको इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो यहाँ पर ऑक्सीजन किसके साथ अटैच हो जाएगा? सोडियम के साथ। अब ये दोनों नेगेटिव पॉजिटिव वाली सिचुएशन इसे हम कहते हैं साल्ट कहते हैं, ठीक है ना? साल्ट बन गया साल्ट ऑफ एसिड। जहां भी कार्बोनाइल के साथ O नेगेटिव किसी मेटल के साथ अटैच हो जाए तो वो क्या हो जाएगा? साल्ट ऑफ एसिड। सोडियम के साथ पोटासियम भी आ सकता है, कोई इसमें नहीं, तो वो क्या बन जाएगा? साल्ट ऑफ एसिड। सिंपल Na ने किसको रिप्लेस कर दिया? R को, क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव दोनों रीअरेंज होकर बॉन्ड बना लें। अब आपने इनका बॉन्ड ब्रेक करना है। देखो सोडियम मेरे पास है बेटा, कहीं भी देख ले जहां भी सोडियम को निकालना हो, मेरे जहन में एक चीज आती है, मैं इसका नमक बना दूं, सोडियम का किसके साथ बन सकता है? क्लोरीन के साथ। तो ऑब्वियसली मेरे जहन में होगा कि अगर मैं HCl डालूं तो सोडियम किसके साथ चला जाएगा? क्लोरीन के साथ। O के कौन ले लेगा? ये नेगेटिव क्या ले लेगा बेटा? हाइड्रोजन। तो ये आपका क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये नमक बन गया। तो मतलब सोडियम निकालना आसान है। कहीं पर ऐसा रिएक्शन हो आगे आपको समझ नहीं आ रही क्या करना है, तो ऑब्वियसली सोडियम निकालने के लिए आपको HCl की जरूरत पड़ेगी ताकि सोडियम क्लोराइड साल्ट बने और सोडियम निकल जाए। देखो मेटल निकालने का यही तरीका है ना, उसको आप न्यूट्रल कर दो, ठीक है, तो वो इस तरह फॉर्म में आएंगे कंपाउंड बना। लास्ट है आपका ऑक्सीडेटिव क्लेवेज ऑफ अल्कीन्स। ऑक्सीडेटिव क्लेवेज ऑफ अल्कीन्स में आपने क्या करना है? कोई भी अल्कीन लेनी है, ठीक है, मोस्टली इसमें सिमेट्रिकल होती है।
आपने एल्कीन लेनी है और उसकी ऑक्सीडेशन करनी है, ठीक है, और किसकी मौजूदगी में करनी है, KMnO4 के साथ, और ये आपकी बेस है कोई भी, ठीक है ना। अल्कलाइन आप KMnO4 कह सकते हो, इसका वर्ड आप यूज कर सकते हो अल्कलाइन KMnO4, और क्या बन जाएगा आपके पास, एसिड बन जाएगा। तो ये प्रिपरेशन है बेटा, इस प्रिपरेशन से शॉर्ट क्वेश्चन कंफर्म आते हैं, ठीक है ना। ये नाइट्राइड से तो सबसे ज़्यादा आए हुए हैं, ठीक है, और प्राइमरी ईयर कोर्स से सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, हाइड्रोलिसिस एस्टर से पूछे गए हैं। तो आपने एसिड बनाना है कि कैसे एसिड बन सकता। तो आज के लिए हमारा सेकंड ईयर का 13 चैप्टर से इतना लेक्चर, नेक्स्ट में इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।